उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। इसलिए ओरिएंटल पब्लिक स्कूल ने ऑनलाइन टीचिंग का अहतमाम किया है, जिसमें हम आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ भेजेंगे। आपसे दरख्वास्त बस इतनी है कि आप लोग अपनी निगरानी में अपने बच्चों से वो काम करवाएं ताकि उनका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी फाइन, ठीक ठाक होंगे और घरों में खैरियत से होंगे, ठीक है, और सेफ होंगे, सफाई का ख़ास ख्याल रखते होंगे और आई नो आप अच्छे बच्चे हो, अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करोगे। ओके students, so this is your social studies class. Okay, so please take out your social studies book. This is your new book and this is fourth edition. So let's start from unit 1 and our topic is the earth in space, which is related to geography. Okay student, before going into detail about the topic the earth in space, let me ask you about geography. Do you know what is geography? Have you heard this word? No? Okay, right, let me explain it. Geography is actually the study of the earth. Okay, as we are going to study about the earth, so this topic is related with geography, so that's why geography is written here, the earth in space. So let's start. Students, as all you know that we are living on the surface of the earth, right? And so we must have some knowledge about our home place. Okay, so the earth, the sun and the moon are all part of the solar system. Do you know what is, students, do you know about solar system? Who will tell me about this system? Have you heard about this one? Yes? Yes, you have studied about the solar system in your previous classes, especially in science subject. So who will tell me the definition? Okay, I'm telling you. Solar system is a system which consists of a sun and 8 planets. Okay, solar system क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें कि एक ब्राइट सन होता है और उसके इर्द गिर्द उसके 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। सन और उसकी फैमिली 8 प्लैनेट्स होती है। अच्छा, नाउ there is another new word, planet. Planet क्या चीज है? Who knows about this? What is planet? So planet is actually a large object which moves around the sun. ठीक है, planet जो है, planets क्या है? ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ऊपर, मतलब स्काई में, स्पेस में, जो कि मूव करते हैं अराउंड द सन, राइट? So sun has 8 planets. Okay, and this whole system is called as solar system. So the solar system is made up of the sun and the 8 planets that move around it in space. So, and the earth is a planet. Okay, यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टूडेंट, स्पेस। स्पेस क्या चीज है? आपने कभी इसके बारे में सुना है? किसी को पता है स्टूडेंट्स? स्पेस, व्हाट इज स्पेस? Okay, let me tell you class, space is a vast dark area beyond the earth and sky. ठीक है, ये एक लामहदूद, आप कह रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत डार्क एरिया है, ठीक है, जिसमें के ना लाइट है, ठीक है, और ना ही कोई एयर है, कंप्लीटली डार्क एरिया है
और वहाँ पे हमारा ये जो सोलर सिस्टम है और इसके साथ और भी बहुत सारे सिस्टम इसी स्पेस में मौजूद हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वहाँ पे सिर्फ एक स्टार नहीं है जिसको हम सन कह रहे हैं, बट एज आई टोल्ड यू वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, सो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्पेस। The Earth is a planet and it is surrounded by the atmosphere, which is made up of layers of air that keep all living things alive. Student, here is a word atmosphere. Do you know what is atmosphere? Hmm? You must know. You have studied about this in your previous classes. Atmosphere. Who will tell me the definition? Hmm? Atmosphere is actually a layer of air which is surrounded by the earth. Okay, and that air keep all the living things on the earth alive. ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है? ये असल में हवा की एक लेयर है, आप समझे एक ब्लैंकेट है जिसने पूरी ज़मीन को अपने लपेट में लिया है, ठीक है। और हम जो है इसी एटमॉस्फेयर में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस जो कि सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो एयर, ठीक है, पार्ट ऑफ एयर ऑक्सीजन गैस जो है। तो हम सारे जितने भी लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो जिंदा इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हैं, ठीक। Space is the vast darkness beyond the earth and sky. There is no light or air in space, but there are millions of stars and planets, millions of kilometers away from earth. We can see the star at night, but we see the sun during the daytime, and never look directly at the sun because it can damage your eyes. ओके स्टूडेंट, हमने पहले भी पैराग्राफ में स्पेस के बारे में डिटेल से पढ़ा कि स्पेस क्या चीज़ है। ये एक डार्क एरिया है जिसमें कि ना लाइट है और ना ही इसमें एयर है। बहुत सारे प्लैनेट्स, मिलियंस ऑफ स्टार, मिलियंस किलोमीटर पे एक दूसरे से है, ठीक है। अच्छा, और स्टार्स ऑफ कोर्स नाइट टाइम में आप बहुत सारे स्टार्स को देख सकते हैं, देखते होंगे ना सारे, ठीक है। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि So students, you can see millions of star at night time. रात के वक्त आपको ज़रूर आसमान पे रोशन सितारे नज़र आते होंगे जो कि स्पेस का हिस्सा हैं, ठीक है। और कहते हैं कि नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि सूरज चूँकि उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो कहते हैं कि उसको डायरेक्टली देखना उसकी तरफ नहीं चाहिए क्योंकि वो आपकी आइज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। Okay student, this is all about your topic, the earth in space. You have studied about this और आज आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी, लाइक जैसे कि सोलर सिस्टम है, स्पेस है, एटमॉस्फेयर के बारे में, प्लैनेट क्या चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने जाना। और स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी वर्ड में, तो किसी भी डेफिनेशन में कोई मसला है, आपको समझ न आई हो, तो आप लोग को मैं देती हूँ होमवर्क। आप लोगों ने होमवर्क आपका क्या है कि आप लोगों ने इस पैराग्राफ को रीड करना है, राइट। और आपको कहीं पे भी कोई मसला है, किसी वर्ड की समझ नहीं आई है, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको डिस्कस कर सकते हैं। फीडबैक का इंतज़ार हम करेंगे। और हाँ, पेरेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगेन हम जो होमवर्क देते हैं बच्चों को या जो लेक्चर्स देते हैं, तो आप काइंडली इनके साथ बैठ के अपनी सुपरविजन में इनसे करवाया करें। थैंक यू सो मच।